Yes, students, continuing with chapter number 5, poverty. Today's my topic is yes, causes of poverty. Now, students, before searching for solution of any problem, we should know the reason why this problem occurred. So, yes, the reasons, the causes behind this problem we will be studying in the C class as well as in my upcoming E class. The very first heading in causes of poverty is historical reasons. Historical reasons means obviously back to the time of Britishers. Now, students, we all know before the Britishers entered in our country was known as ESS Sone ki Chidiya, and India was very well. India was doing very well in all the different fields, let it be it agriculture or industry or service sector. Everywhere India flourished a lot. Now, and yes, exports were also done of cotton textiles, and apart from that, we all know silk, spices, paddy, all these things were also exported. But then, slowly, not only the Britishers, but even the French people, even the Dutch people entered in our country, and we all know their policies were such that were not good for our country. Yes, and during the British rule, the agriculture sector, if I start with agriculture sector, so agriculture sector suffered a lot. Agriculture was rain led, based on monsoon, and British people were never ever interested in investing money in any kind of irrigation project. And yes, because of draw, because of zamindari system, because of tenancy system, the economic condition of farmers in our country started deteriorating. They were under the pressure, and the pressure was to pay the interest of loan that they have taken from zamindars, from money lenders, from big businessmen, etc. मतलब एक तरफ पॉलिसीज ऐसी, एक तरफ बिकॉज ऑफ ड्रॉ एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है, दूसरी तरफ जो लोन लिया गया है उसका पेमेंट इश्यू हो गया है, एंड सो इट इज़ बट नेचुरल कि पावर्टी चालू हुई थी. एंड जमींदार्स ऑब्वियसली बात है अपना पैसा छोड़ेंगे नहीं, तो जो कल्टीवेटर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनका लैंड उनसे छीन लिया गया था. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. यस, एग्रीकल्चर हमने देख लिया. नाउ लेट अस सी द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रीज में भी ऐसी पॉलिसीज थी जो बेनिफिशियल, स्पेशली इंग्लिश पीपल के लिए, मैं ऐसे बोलूँ ब्रिटेन के लिए थी, बेनिफिशियल बिल्कुल भी इंडिया के लिए वो नहीं थी. यस, नो डाउट जो गुड्स थे उनके सप्लाई के लिए हमारे कंट्री में स्पेशली इंडियन रेलवेज बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे, और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ऐसी थी जिनकी वजह से Britishers gained surplus from production and sale in India, which they invested in Britain to speed up industrialization and used Indian market to sell final goods produced in Britain. Now ये सब हम जानते हैं, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिनसे इंडियन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता था. जो रॉ मटेरियल वो इंडिया से लेके जाते थे, बनाते वो अपने कंट्री में थे, और वापस जब वो सेल होने के लिए आता था इंडिया में, फाइनल प्रोडक्ट जब सेल होने आता था, तो उसके प्राइसेस जो होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, एंड जो प्रॉफिट होता था वो अपने कंट्री में, अपने कंट्री के प्रोग्रेस के लिए वो लोग लेके जाते थे. सो इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लूजिंग देयर कॉम्पिटिटिव पावर एंड प्रोडक्शन पावर. पॉलिसीज ऐसी थी कि प्रोडक्शन, मतलब सोचते थे कि प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. एंड यस,
small scale and cottage industries of India were also ruined, and इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा, सो ऑब्वियसली बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एंड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो पॉवर्टी भी होगी ही. नाउ स्टूडेंट्स, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, जिसमें पहला है नेचुरल कॉजेज. नाउ नेचुरल कॉजेज, अगेन वी विल बी टॉकिंग ओवर हियर अबाउट एग्रीकल्चर. नाउ वी ऑल नो maximum people in our country stay in villages and they are dependent on agriculture. Agriculture, again, it is rain led. Yes, it depends upon rain, it depends upon weather condition. There were repeated drought in our country, uncertainty of monsoon, कभी कभी फ्लड्स भी हो जाया करते थे. इसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन कम होता था, कम प्रोडक्शन होगा, इनकम कम आएगी, एंड ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी विल इंक्रीज. द नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक फैक्टर्स. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस वी ऑल नो प्लानिंग पीरियड स्टार्टेड, and due to economic development and rapid improvement in health services बहुत अच्छी होने लगी, तो डेथ रेट जो था वो कम हो गया, जो हमारे कंट्री के लिए अच्छी बात है. मगर साथ साथ में बर्थ रेट जो था वो उतना रिड्यूस नहीं हुआ. डेथ रेट डिक्लाइंड, बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट डिड नॉट रिड्यूस. सो ऑब्वियस सी बात है the result is increase in population. Now, high increase in population did not allow per capita income to increase. Population का growth rate development के growth rate से ज़्यादा था, तो इस वजह से per capita income इतना increase नहीं हुआ. Low per capita income and big size of families resulted in poor quality of life. Obviously बात है पैसा इतना नहीं है, फैमिली बहुत बड़ी है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा नहीं होगा. There was rapid increase in labor supply. Obviously बात है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लेबर सप्लाई भी ज़्यादा होगा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं थी. सो बैक टू द सेम थिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वेजेस भी इतने अच्छे नहीं थे, एंड ऑब्वियसली पॉवर्टी बढ़ने लगी. नेक्स्ट आई मूव ऑन टू इकोनॉमिक फैक्टर्स. यस, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स. उसमें से सबसे पहला है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. नाउ स्टूडेंट्स, ओवर हियर इट सेज दैट one of the important reasons of high poverty in rural India is low agriculture productivity per laborer. Per laborer का productivity इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए actual. Reason again, irrigation facilities proper नहीं थी, sufficient technology नहीं थी. Now as the people were uneducated, so उसका असर पड़ता है. ट्रेनिंग भी उनको प्रॉपर नहीं मिली थी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंडेंट थी, मतलब मैनी पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो थी वो कम थी. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, अगर मुझे ट्रेनिंग है, अगर मुझे नॉलेज है, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है, सो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था. सो इस वजह से प्रोडक्शन इतना नहीं था. So obvious सी बात है, no production, no sales, and yes, poverty increased. The next one is unequal distribution of land and property. Now students, land we all know बहुत ज़्यादा important होता है, especially agriculture sector के लिए. Actually for every sector, land is important. Yes, among the 4 factors of production वो आता है. So over here वी ऑल नो, जब अगेन सेम टाइम हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करेंगे, तभी जमींदारी सिस्टम था. लैंड ओनरशिप जो थी वो बहुत कम लोगों के पास थी, बहुत कम जमींदार ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी. सो ऑब्वियस ही बात है इतने बड़े ज़मीन पे वो खुद तो फार्मिंग का काम नहीं कर सकते थे,
So obviously they appointed others to do the work. Now zamindars were not at all interested in investing in their land, and on the other side the tenants thought that it is not my land, I'm not the owner of it, then why should I invest in it? So obvious सी बात है, अगेन सेम थिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, नया टेक्नोलॉजी नहीं आ पाएगा. ठीक है, तभी इतना तो नया टेक्नोलॉजी नहीं भी था, मगर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्टिविटी लो रही, एंड ऑब्वियस सी बात है द पॉवर्टी इंक्रीज्ड. द थर्ड वन is minimal development of small and cottage industries. Now जो second 5-year plan था ना students, उसमें ज़्यादा importance was given to heavy and basic industries, that is steel, cement industries जो होती हैं वो heavy and basic industries होती हैं, उनको ज़्यादा importance दिया गया था. But in rural areas जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती थी वो थी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. दे वर निग्लेक्टेड. यस, moreover agriculture and allied activities like animal husbandry, dairy farming, fisheries etc. were growing slowly, and this increased seasonal unemployment. As a result poverty remained high. सीधी सी बात है, अगेन सेम थिंग ओवर हेयर. प्लानिंग जो था सेकेंड 5-year प्लान, इम्पोर्टेंस इतना नहीं मिला एग्रीकल्चर सेक्टर को भी. सो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स, जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो थी वो इतना जल्दी ग्रो नहीं हो पाई, एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी गो हैंड इन हैंड. सो पॉवर्टी remained high. Now the next reason is rapid increase in prices. Now ये तो बहुत ही simple and easy है. Prices अगर बढ़ते रहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कम हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, इनकम इतनी नहीं हो पाएगी, सो ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी बढ़ेगी. एक क्लास ऑफ पीपल को बहुत पैसा मिलेगा बिकॉज एज द प्राइसेस इंक्रीज, सो ऑब्वियस सी बात है वी ऑल नो प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि सप्लायर को, प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, सो वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी विल अर्न बेटर, द अदर वोंट अर्न बेटर. सो सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है, प्राइस राइज सीरियसली इफेक्ट्स पॉवर्टी बिकॉज ऑफ ड्रॉ, low national production, rapid increase in demand, increase in production cost, price of goods and services, as well as edible goods rise rapidly. This reduces the purchasing power of low income group. It reduces standard of living, वही चीज़ जो मैंने बताई अभी. It increases poverty. On the other hand, increasing prices benefit businessmen, traders and big farmers. This increases unequal distribution of income in the society, and we all know unequal distribution होगा तो इस वजह से hatred भी बढ़ेगा. Our next one is high rate of unemployment. Now in India we all know major part of rural India is dependent on agriculture. Agriculture, same thing over here, it is said that it is dependent upon monsoon, rain like. Hence only one crop in a year can be cultivated. वैसे मल्टी क्रॉपिंग पॉसिबल होता अगर इरिगेशन फैसिलिटीज होती तो, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. तो इस वजह से वन क्रॉप इन अ ईयर ही कल्टिवेट होता था, एंड ऑब्वियस सी बात है इस वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती थी. हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वो भी हमने अभी डेमोग्राफिक में स्टडी किया. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इस वजह से बर्डन ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज्ड. In rural India, lack of development of allied industries are responsible for high illiteracy, low mobility of labor, high rate of unemployment and poverty. Now क्योंकि allied industries का progress नहीं हो पा रहा था, it means
लोग अर्न नहीं कर पा रहे थे। लोग अगर अर्न नहीं कर पाएंगे सो ऑब्वियस ही बात है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे सो इलिटरेसी ज़्यादा होगा, पढ़ा नहीं पाए, ट्रेनिंग नहीं मिली तो वो कहीं और जगह पे जॉब भी नहीं कर पाएंगे। जॉब नहीं हुआ इट मीन्स यस हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड poverty. Students, I hope I am clear to you with the topics that we have done in the C class. Yes, I'll continue with the same topic in my next T class also, students. Yes, students. Thank you.